तो in this example, I hope it is pretty clear average due date कैसे calculate करना है. Simple है, right? Now an important concept. What is average due date हमने पढ़ा. Sir, average due date is nothing but date of payment. Such date of payment on which if payment is given, there is no loss of interest to either party. किसी भी पार्टी को कोई इंटरेस्ट का लॉस नहीं होगा. हम बोल सकते हैं जीरो इंटरेस्ट डेट इज एवरेज ड्यू डेट. इसका मतलब अगर हमने डिस्कस किया है एवरेज ड्यू डेट का कंसेप्ट बेसिकली डेट ऑफ पेमेंट डिसाइड करने में यूज नहीं होता है. इट इज यूज्ड इन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट. तो अब समझिए, इफ पेमेंट इज गिवन, if payment is given after average due date, एवरेज ड्यू डेट के बाद अगर पेमेंट दिया जाए तो एवरेज ड्यू डेट मतलब वो डेट जिस पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, कोई रीबेट नहीं मिलेगा, कोई इंटरेस्ट सेव नहीं होगा. अगर एवरेज ड्यू डेट के बाद पैसा दिया है, जीरो इंटरेस्ट डेट के बाद पेमेंट दिया है, मतलब लेट पे किया है, मतलब टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट पे लेट नंबर ऑफ डेज का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. तो इफ पेमेंट इज गिवन आफ्टर एवरेज ड्यू डेट, इंटरेस्ट along with principal, interest along with principal amount will be paid. How will you calculate interest here? It will be simple interest. Interest will be total amount into rate of interest into number of days, जितना दिन लेट पे किया है, divided by 365. Similarly, if payment is given before average due date, एवरेज ड्यू डेट से पहले पैसा दे दिया है सर, एवरेज ड्यू डेट से पहले पैसा दिया है मतलब जीरो इंटरेस्ट डेट से पहले पेमेंट दे दिया है, ही विल बी सेविंग सम इंटरेस्ट. जल्दी पे कर दिया है तो ही विल सेव सम इंटरेस्ट और ही विल गेट सम रीबेट. तो इंटरेस्ट विल बी सेव्ड, इंटरेस्ट विल बी सेव्ड और rebate will be received by payer. Again, how to calculate that interest or rebate? That interest or rebate will be total amount. Simple interest calculate करना है, into rate of interest into number of days saved divided by 365. Clear? So we would be calculating interest in further examples, using this technique of average due date. आगे के examples में हम interest calculation भी start करेंगे using this technique. तो आप लोग इतना copy करेंगे and then we'll enter into examples of classwork. Take out your classwork book. First example. A trader, first question. Average due date, classwork section, first question. A trader having accepted following several bills falling due on different dates now desires to have these bills cancelled and to accept a new bill for whole amount payable on average due date. Rate of interest is 12% per annum. If he wants to save
if he wants to save 887.5 by way of interest, then what should be, when he should pay the entire amount? कब सारा पैसा दिया जाएगा? आपको डेट ऑफ बिल दिया है फ्रेंड्स. डेट ऑफ बिल अगर दिया जाए तो हमें ड्यू डेट में 3 days ऑफ ग्रेस ऐड करना पड़ेगा. तो लेट अस फर्स्टली कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट, फिर हम लोग इंटरेस्ट वाले पार्ट पे जाएंगे. एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले ड्यू डेट सभी ट्रांजैक्शंस का डिसाइड करना पड़ेगा. इफ वी आर टू कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट, हमको सबसे पहले सभी ट्रांजैक्शन का ड्यू डेट डिसाइड करना है. तो वी विल बी कैलकुलेटिंग ड्यू डेट. अमाउंट फॉर ईच ट्रांजैक्शन इज ऑलरेडी गिवन. नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करेंगे, selecting a base date, and then we'll find out product. Start with due date. First transaction, first bill. Date of bill is 1st March. 1st March plus 2 months is the duration of bill. So 1st March plus 2 months. 1/3 plus 2 months is 1/5 plus 3 days of grace. So it comes to 4/5/2010. Amount given is 40,000. 10th of March plus 3 months. 10th of March plus 3 months is 10th of June plus 3 days of grace, 13th of June 2010. 5th April plus exactly 60 days. 5th April plus 60 days. See again, how many days are left in April? 30 में से 5 days चले गए, तो there are 25 days in April. 31 days in May. 25 days in April plus 31 days in May. So it comes to 56 days. So 4 days of June plus 3 days of grace. So 7th of June will be your due date. 7th of June will be your due date. 20th April plus 1 month will be 23rd of May. 23rd of May. 10th May plus 45 days. 10th May plus 45 days. See, May में 31 days हैं, 10 days चले गए हैं, तो 21 days May के बचे हैं, तो 24 days remaining will be of June. Total 45 days ऐड करने हैं. 21 days in the month of May, तो बाकी के 24 days in the month of June plus 3 days of grace, तो 27th of June will be your due date. तो first step we calculated due date for all the transactions given. ड्यू डेट कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट क्या करना है, हमको सर एक बेस डेट सेलेक्ट करना है. हमने डिस्कस किया था कोई भी डेट बेस डेट ले सकते हैं. एडवाइजेबल क्या है, फर्स्ट डेट या अर्लीस्ट डेट जो भी होगा उसे बेस डेट ले लेना है. तो हम लोग यहां पे 4th of May को अपना बेस डेट मान के चल रहे हैं. वी आर कंसिडरिंग 4th of May एज आर बेस डेट. 4th of May 2010 इफ इज आर बेस डेट. कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ डेज कितने होंगे, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट टू ड्यू डेट. तो 4th of May, फर्स्ट में नंबर ऑफ डेज विल बी 0. 4th of May to 13th of June. 4th of May to 13th of June. How many days are left in May? 31 में से 4 days चले गए, तो May में 27 days हैं, 13 days June के हैं. We would say total 40 days. 7th of June, तो again 27 days of May and 7 days of June, 34 days. 23rd May, तो 4th May to 23rd of May, 19 days. 27th June, तो 27 days of May and 27 days of June, 54 days. नंबर ऑफ डेज समझ में आ रहा है सबको? नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है सर? प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है. किसका प्रोडक्ट? अमाउंट एंड नंबर ऑफ डेज. तो 40,000 इंटू 0, 30,000 इंटू 40, 20,000 into 34,
37,500 into 19. And 54 into 50,000, it comes to 27 lakh. Amount total comes to 177,500. Total product 52,92,500. Total product is 52,92,500. तो एवरेज ड्यू डेट क्या होगा? एवरेज ड्यू डेट इज नथिंग बट बेस डेट प्लस टोटल प्रोडक्ट divided by total amount. Base date क्या select किया था हमने? 4/5/2010 was selected as base date plus total product 52,92,500 divided by total amount 177,500. डिवाइड कीजिए 4/5/2010 प्लस 29 पॉइंट समथिंग डेज आता है, 29 पॉइंट एनीथिंग, हम लोग राउंड इट ऑफ करेंगे टू द नेक्स्ट नंबर, मतलब 4/5 प्लस 30 डेज, तो 3rd June 2010 विल बी योर एवरेज ड्यू डेट. एवरेज ड्यू डेट समझ में आया? ड्यू डेट कैलकुलेट किया, बेस डेट सेलेक्ट किया, नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट किया फ्रॉम बेस डेट टू ड्यू डेट, प्रोडक्ट फाइंड किया, एंड देन वी कैलकुलेटेड एवरेज ड्यू डेट. आफ्टर एवरेज ड्यू डेट क्वेश्चन में कुछ और भी पूछा है. फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट लाइन रीड करेंगे. देयर इज समथिंग एल्स इन द क्वेश्चन. दे आर सेइंग rate of interest is 12% per annum. If A wants to save 887.5 by way of interest, then when he should pay the entire amount? अगर A 3rd June को सारा पेमेंट देता है, 3rd June को सारा पेमेंट देता है, तो कितना पेमेंट देना पड़ेगा? 3rd June को पेमेंट देगा तो सर इतना पेमेंट देना पड़ेगा, 177,500 देना पड़ेगा. 3rd June इज जीरो इंटरेस्ट डेट. इस दिन पेमेंट देगा तो किसी को कोई इंटरेस्ट का नुकसान नहीं होगा. वो अगर 887.5 सेव करना चाहता है, बचाना चाहता है, तो उसे 3rd जून के पहले पे करना पड़ेगा कि बाद में? 3rd जून के बाद पे करेगा तो लेट पेमेंट हो जाएगा. ही विल हैव टू पे इंटरेस्ट, ही विल हैव टू पे एक्स्ट्रा. यहां पे ही डजंट वांट्स टू पे एक्स्ट्रा, ही वांट्स टू सेव सम मनी. तो पैसा बचाने के लिए उसे रिबेट मिलना चाहिए, इंटरेस्ट रिसीव होना चाहिए, और इंटरेस्ट रिसीव करने के लिए उसे 3rd जून के बाद नहीं, 3rd जून के पहले पे करना पड़ेगा ना. ही विल हैव टू मेक पेमेंट बिफोर 3rd जून. सर कितना पहले पे करना पड़ेगा? तो 887.5 अगर वो सेव करना चाहता है तो हमें सिंपली क्या कैलकुलेट करना है? ये 887.5 कितने दिन का इंटरेस्ट है? 887.5 जितने भी दिन का इंटरेस्ट है उतना अर्ली उसे पे करना पड़ेगा ना. कैलकुलेट करते हैं. इफ A wants to save 887.5, if he wants to save 887.5, rebate will be 177,500
प्रिंसिपल या टोटल अमाउंट into rate of interest into number of days saved divided by 365. यहां पे रीबेट दे दिया है, इंटरेस्ट ही वॉन्ट्स टू सेव दे दिया है, टोटल अमाउंट ऑन विच ही वॉन्ट्स टू सेव दिस इंटरेस्ट इज 177,500. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाउ मच? 12%. नंबर ऑफ डेज वो हमें कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ डेज टू बी सेव्ड हमें कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय 365. तो 887.5 मल्टीप्लाइड बाय 365 divided by 177,500 divided by 12%, we will get number of days. Number of days I suppose मिल जाएगा हमको. Number of days हमको मिलता है 15.2 days. Number of days कितना मिलता है? 15.2 days. 15.2 days प्लस करना है आपको कि माइनस करना है? माइनस करना है सर. माइनस करना है तो हम लोग राउंड ऑफ किस नंबर पे करेंगे? प्रीवियस नंबर पे करेंगे. तो नंबर ऑफ डेज हम लोग कितना लेंगे? 15 डेज लेंगे सर. तो डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट विल बी एवरेज ड्यू डेट, दैट इज 3rd June 2010 माइनस 15 डेज, माइनस 15 डेज. तो जून में 3 डेज एंड 12 डेज ऑफ मे, मतलब 19th of May 2010 will be your average, will be your date of payment. समझ में आ रहा है? हमने जितना भी रिबेट उसका था वो रिबेट कितने नंबर ऑफ डेज का था वो कैलकुलेट किया एंड फ्रॉम डेट ऑफ पेमेंट वो नंबर ऑफ डेज डिडक्ट कर दिए टू गेट आवर एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट. मतलब वो 19th मई को पे करेगा तो ही वुड बी एबल टू सेव 887.5. उसे 887.5 जितना कम पेमेंट देना पड़ेगा. सर एक और केस लेते हैं. व्हाट इफ ए पेज 1260 एक्स्ट्रा और 1260 एज पेनल्टी. मतलब बोल सकते हैं वो 1260 इंटरेस्ट पे कर रहा है. ए 1260 इंटरेस्ट पे कर रहा है. तो अगेन हमको क्या कैलकुलेट करना है? ये इंटरेस्ट 1260 कितने डेज का इंटरेस्ट है? दिस इंटरेस्ट ऑफ 1260 इज फॉर हाउ मेनी डेज? इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल अमाउंट into whatever rate of interest is given into number of extra days divided by 365. तो 1260 is interest amount given, total amount is 177,500, rate of interest is 12%, number of days हमें कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट कीजिए. नंबर ऑफ डेज कितना मिलता है? हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज आर यू गेटिंग? वन 1260 into 365 divided by 177,500 divided by 12%. तो it comes to 21.59 डेज. प्लस करना है मतलब 22 डेज. तो व्हाट विल बी डेट ऑफ पेमेंट? डेट ऑफ पेमेंट क्या होगा? 177,500. सॉरी, डेट ऑफ पेमेंट क्या होगा? 3rd June 2010 इज जीरो इंटरेस्ट डेट. वो एक्स्ट्रा पे कर रहा है मतलब लेट पे कर रहा है. कितना लेट पे कर रहा है सर? 22 डेज लेट पे कर रहा है. तो 22 डेज ऐड करेंगे 3rd जून में, हमको मिलेगा 25th of June 2010.
What will be date of payment if he is paying 1260? It will be 25th of June 2010. एक और केस देखते हैं. Suppose A makes entire payment. A makes entire payment on 15th of July 2010. A सारा पेमेंट कब दे रहा है? 15th of July 2010. Then what amount will he pay? कितना पेमेंट देगा वो? 15th जुलाई को पे कर रहा है. What is our average due date? Our average due date is sir 3rd June. 3rd जून को पे करेगा तो कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा. 15th जुलाई को पे कर रहा है. कहना इसे लेट पे कर रहा है. लेट पे कर रहा है तो उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा. कितना लेट पे कर रहा है? 3rd जून से 15th ऑफ जुलाई. 3rd जून से फ्रॉम जीरो इंटरेस्ट डेट टू 15th ऑफ जुलाई कितना डेज होता है? तो 27 डेज ऑफ जून प्लस 15 डेज ऑफ जुलाई, टोटल 42 डेज एक्स्ट्रा या 42 डेज लेट पे कर रहा है. 42 डेज लेट पे कर रहा है तो 42 डेज का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना. हाउ मच इंटरेस्ट ही इज सपोज टू पे? 177,500. उस पे 12% पे करना है फॉर 42 डेज. तो ही इज सपोज टू पे इंटरेस्ट ऑफ हाउ मच? He is supposed to pay 2451 as interest. He is supposed to pay 2451 as interest. तो amount he is supposed to pay, amount A will pay will be principal amount कितना था? 177,500 प्लस उसको 2451 as interest पे करना पड़ेगा. तो 1,79,951 is the amount he is required to pay. I hope everyone is getting this. Similarly, decide करो if A makes entire payment. If A makes entire payment on 21st of March, then amount payable is how much? अगर 21st मार्च को उसे पेमेंट देना है तो कितना पे करेगा? What is zero interest date friends? 3rd जून. 3rd जून को अगर वो पे करता है तो उसे कोई इंटरेस्ट नहीं देना है. 21st मार्च को अगर पैसा दे रहा है, 21 मार्च को अगर पैसा दे रहा है मतलब जीरो इंटरेस्ट डेट से पहले पे कर रहा है, जल्दी पे कर रहा है. और जल्दी पे करेगा तो उसे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, उसे रिबेट मिलेगा. ही विल सेव सम इंटरेस्ट. तो कितना इंटरेस्ट वो सेव कर रहा है या कितना रिबेट उसे मिल रहा है? हाउ मच रिबेट ही इज गोइंग टू गेट? 177,500 प्रिंसिपल अमाउंट है. उस पे कितना परसेंट इंटरेस्ट है? 12% इंटरेस्ट है. फॉर हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज? नंबर ऑफ डेज कहां से कहां तक कैलकुलेट करना है? सर फ्रॉम 21st मार्च टू 3rd जून. तो जून में 3 डेज, मई में 31 डेज, अप्रैल में 30 डेज एंड मार्च के 10 डेज 21st से 31st मार्च 74 डेज. हाउ मेनी डेज? 74 डेज. 3 days of June, 31 days of May, 30 days of April and 10 days of March. So he will be saving interest for how many days? He will be saving interest for 74 days. So what will be his rebate? What will be interest saved for 74 days? It will be 177,500 into 12% into 74 divided by 365.
he will be saving interest of 4318. He will be saving interest of 4318. तो अमाउंट पेएबल क्या हो जाएगा? अमाउंट पेएबल क्या हो जाएगा? इट विल बी 177,500 माइनस इतना उसका सेविंग्स है 4318. 177,500 minus 4318. He would be paying 173,182. Amount payable will be 1,73,182. I hope इंटरेस्ट का कंसेप्ट समझ में आ रहा है. एवरेज ड्यू डेट पे पैसा देगा तो कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है. एवरेज ड्यू डेट के बाद पेमेंट देगा तो उतने एक्स्ट्रा डेज का उसको इंटरेस्ट पे करना है. अमाउंट पेएबल विल बी प्रिंसिपल प्लस दैट इंटरेस्ट. एवरेज ड्यू डेट के पहले पे करेगा, जल्दी पे करेगा तो वो इंटरेस्ट सेव करेगा, मतलब उसको रिबेट मिलेगा. कितने डेज का रिबेट मिलेगा? तो हम लोग ने प्रिंसिपल अमाउंट पे जितना दिन जल्दी पे किया उतने दिन का रिबेट कैलकुलेट किया. एंड अमाउंट पेएबल इज दैट प्रिंसिपल अमाउंट माइनस द रिबेट ही इज गेटिंग. समझ में आया सबको? तो ये पूरा का पूरा स्क्रीन पॉज करके कॉपी करेंगे, रिवाइज करेंगे एंड देन रीस्टार्ट करेंगे. प्लीज कॉपी. चलिए नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन 2. इन क्वेश्चन 2 आपको क्या दिया है? F owes to E the following amounts. F owes to E मतलब amount is payable by F to E. F E को इतना पैसा देने वाला है. 5,000 ड्यू ऑन 30th मार्च. ड्यू ऑन 30th मार्च मतलब सीधा ड्यू डेट्स क्वेश्चन में दे दिया है. 18,000 ड्यू ऑन 2nd अप्रैल. 60,000 ड्यू ऑन 30th अप्रैल. 17,000 ड्यू on 10th of June. He desires to make full payment on 30th June. It is not off, it is on 30th June with interest at 10% per annum from average due date. Find out average due date and find out the amount of interest. तो हमको सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करना है? We need to firstly calculate what is average due date. We need to firstly calculate what is average due date. Due dates here are directly given. Amounts हर एक ट्रांजेक्शन का दिया है. To find average due date हमको number of days and product calculate करना है. What are the due dates given? First, rupees 5,000 is due on 30th March 2010. 5,000 is due on which date, friends? 30th March 2010. 18,000 is due on 2nd April. 18,000 का अमाउंट ड्यू है ऑन 2nd April. 60,000 का अमाउंट ड्यू है ऑन 30th April. 30th April 2010. Amount of 60,000 is due. 17,000 is due on 10th of June. 17,000 is due on 10th of June. So you are given various due dates with the help of which you need to calculate average due date. To calculate average due date, पहले क्या करना है? हमको एक बेस डेट सेलेक्ट करना है. बेस डेट क्या होगा सर? कोई भी डेट ले सकते हैं. We decided हम लोग हमेशा अर्लीस्ट डेट को, अर्लीस्ट ड्यू डेट को बेस डेट ले लेंगे. तो यहां पे हमारा बेस डेट क्या होगा? इट विल बी 30 मार्च 2010. व्हाट विल बी योर बेस डेट? 30 मार्च 2010. तो स्टार्ट कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ डेज. हियर इट विल बी 0 डेज. 30 मार्च से 2nd अप्रैल 31, 1, 2, 3 डेज. 30 मार्च से 30th अप्रैल, तो 30 डेज ऑफ अप्रैल एंड 1 डे ऑफ मार्च. 31 डेज सर. 30 मार्च से
10th of June, तो 30 days of April, 31 days of May, 10 days of June and 1 day of March. 30 plus 31 plus 10 plus 1 day of March. 72 days आया सबका. कैलकुलेट कीजिए प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट एंड नंबर ऑफ डेज comes to 54,000. 60,000 into 31, 18,60,000. 17,000 into 72. 12,24,000. Calculate product, total product. Total amount is 1 lakh. Total product 31,38,000, I suppose. What will be average due date then? Average due date क्या होगा sir? Average due date is nothing but base date plus total product divided by total amount. What is base date selected? Base date selected is 30th March 2010. Total product 31,38,000. Total amount 1 lakh. तो 30th March 2010 प्लस 31.38 डेज आएगा. 31 पॉइंट एनीथिंग हम लोग नेक्स्ट नंबर पे राउंड ऑफ करेंगे. 32 डेज. तो 30th मार्च प्लस 32 डेज. मार्च में एक दिन, अप्रैल में 30 डेज एंड 1 डे ऑफ मे. 1st May 2010 विल बी योर एवरेज ड्यू डेट. एवरेज ड्यू डेट फ्रेंड्स कितना मिला? 1st May 2010. आफ्टर एवरेज ड्यू डेट आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है? इफ ही डिजायर्स टू मेक फुल पेमेंट ऑन 30th June, जीरो इंटरेस्ट डेट, वो डेट जिस पे इंटरेस्ट नहीं देना है, दैट इज 1st May. सारा 1 लाख का पेमेंट 1st May को देगा तो कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है. बट व्हेन इज ही डिजायरिंग टू पे दी अमाउंट? वो कब पे करना चाहता है सारा पैसा? 30th June को पे करना चाहता है. मतलब वो सारा का सारा पेमेंट लेट देना चाहता है. और क्योंकि लेट पे कर रहा है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ेगा. तो इंटरेस्ट कितना पे करेगा वो? ऑन 1 लाख इंटरेस्ट रेट 10% है. फॉर हाउ मेनी डेज? सर 1st May is zero interest date. He wishes to make payment on 30th June. तो we need to calculate interest from 1st May to 30th June. हमें इंटरेस्ट 1st May से 30th June तक कैलकुलेट करना है. मतलब मे मंथ में 30 डेज आर रिमेनिंग. 31 minus 1, 31 minus 1, 30 days plus जून के 30 days. He is supposed to pay interest for how many days? 60 days, sir. On 1 lakh, 10% interest for how many days? For 60 days. It comes to 1643.8. 1644. So amount payable on 30th June will be principal amount of rupees 1 lakh plus interest of 1644. On 30th June, he is supposed to pay 1,01,644. Amount payable on 30th June is 1,01,644. I hope समझ में आया ये सब पूरा? Everyone? Okay. Question 3 देखेंगे. Look at question 3 now.
Question 3. X has withdrawn following amounts in anticipation of profits. So these are drawings made out of profits. X has withdrawn following amounts in anticipation of profit during half year ended 31st March. Different date of drawings आपको दिया है with amount of drawings. As per partnership deed, interest is to be charged at 10% per annum on all drawings. Determine with the help of average due date method the amount of interest to be paid by Mr. X for the period ended 31st March 2010. मतलब सिंपली यहाँ पे फ्रेंड्स क्या कैलकुलेट करना है? We are supposed to calculate interest on drawings. Using this technique of average due date, हम interest on drawings भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ये जो different date of drawings दिया है, why not calculate an average date of drawings? Why not calculate an average date of drawings? And from that average date of drawings, total drawings पे 31st March तक का interest calculate कर लेंगे. From that average date of drawings, we will calculate interest up to 31st March. तो यहां पे average date of drawings calculate करना है. Now we are doing solution to question 3, where average date of drawings calculate करना है. तो due date की जगह column will be of date of drawings. Amount of drawings given ही है, number of days and product. What are different date of drawings given? Date of drawings अलग अलग क्या दिया है फ्रेंड्स? First is 10th of October. 10th of October 2010. Amount withdrawn is 500. फिर 20th November 2010. Amount withdrawn is 1000. 15th of December. 15th of December 2010. Amount withdrawn is 1500. 17th of January 2010. Amount withdrawn is 800. 12th Feb 2010. Amount withdrawn is 2500. 30th March 2010. Amount withdrawn is 700. तो वेरियस डेट ऑफ ड्राइंग्स आर गिवन, जिसकी हेल्प से आपको एवरेज डेट ऑफ ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है. तो हमको एवरेज डेट ऑफ ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए सर वापस एक बेस डेट सिलेक्ट करना है. वी नीड टू सिलेक्ट अ बेस डेट एंड एज डिस्कस्ड अर्लियर हमेशा अर्लीस्ट डेट को हम अपना बेस डेट ले लेंगे. मतलब हम 10th अक्टूबर 2010 को बेस डेट ले लेंगे. 10th अक्टूबर 2010 में बी टेकन एज आर बेस डेट. तो नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना है फ्रॉम बेस डेट टू ईच डेट ऑफ ड्राइंग्स. बेस डेट से हर एक डेट ऑफ ड्राइंग्स तक. बेस डेट अक्टूबर है, मतलब नंबर ऑफ डेज विल बी ऑफ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च. Fine. 10th October, number of days will be 0 number of days. 10th October to 20th November. 10th October to 20th November मतलब अक्टूबर में there are 21 days और नवंबर का 20 days. टोटल हो गया 41 days. 10th October to 15th of December. 10th अक्टूबर से 15th दिसंबर, तो अक्टूबर में 21 डेज, नवंबर में 30 डेज एंड दिसंबर में 15 डेज. टोटल कम्स टू 66 डेज.
10th अक्टूबर टू 17th जैन, तो अक्टूबर का 21 डेज, नवंबर का 30 डेज, दिसंबर का भी पूरा 31 डेज एंड जनवरी का 17 डेज. तो टोटल कम्स टू 50, 72, 89 डेज. 12th फेब तक अक्टूबर का 21 डेज, नवंबर 30 डेज, दिसंबर 31 डेज, जनवरी 31 डेज एंड 12 डेज ऑफ फेब्रुअरी. टोटल कम्स टू 113, 125 days. And then this will be 99 days, I suppose. Yes, 99 days. And then up to 30th March, so 21 days of October, 30 days of November, 31 days of December, 31 days of January, 28 days of Feb and 30 days of March. So total comes to 171 days, I suppose. 171 days. Number of days calculate किया हमने from base date to due date. Now product for amount and these total number of days. Product for amount and total number of days. तो first में 500 into 0 days, 1000 into 41 days, 1500 into 66 days, 800 into 99 days, 79,200. 2500 into 125 days, 3,12,500. 700 into 171 days, 119,200, 119,700. Total product, total amount comes to 9,000, I suppose. Total amount comes to 7,000, sorry. And total product comes to 651,400. Total product comes to 651,400. So sir, what will be average date of drawings then? Average date of drawings will be nothing but base date. What is base date? 10th of October plus what is total product? 651,400. What is total amount, sir? Total amount is 7,000. तो एवरेज डेट ऑफ ड्रॉइंग्स क्या हो जाएगा? इट विल बी 10th अक्टूबर प्लस 651,400 डिवाइडेड बाय 7,000. इट कम्स टू 93.05 days. 93.05. वी विल ऑलवेज राउंड इट ऑफ टू 94 days. हायर नंबर पे ही राउंड ऑफ करेंगे. तो 10th अक्टूबर प्लस 94 days. सी अक्टूबर में 21 days आर लेफ्ट, फिर नवंबर का 30 days, दिसंबर का 31 days, टोटल 82 days हो गया. तो रिमेनिंग 12 days जनवरी में आएगा. मतलब 12 जनवरी 2010 will be average date of drawings. Average date of drawings comes to 12th of January 2010.
एवरेज डेट ऑफ ड्रॉइंग्स अगर 12th ऑफ जनवरी 2010 है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अब कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे मिलेगा सर? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी फ्रॉम दिस एवरेज डेट टू 31st ऑफ मार्च। टोटल ड्रॉइंग्स पे मतलब 7000 पे सीधा 12th जनवरी से 31st मार्च तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। 12th जनवरी से 31st मार्च, तो जनवरी में हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट? 19 डेज, प्लस फेब्रुवरी में कितने डेज हैं? 28 डेज, प्लस मार्च में कितने डेज हैं? 31 डेज। तो 19 प्लस 28 प्लस 31, वी नीड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर 78 days. 7000 पे on 7000 interest is to be calculated at 10% for 78 days. 7000 पे interest on drawings for 78 days comes to rupees 150. You people must be having calculators. 7000 पे 10% for 78 days, it comes to 150. तो using technique of average due date, how we can calculate interest on drawings, वो समझ में आया? जैसे ड्यू डेट्स का एवरेज कैलकुलेट करते हैं, वैसे ही डेट ऑफ ड्रॉइंग्स का हमने एवरेज कैलकुलेट किया, एक एवरेज डेट ऑफ ड्रॉइंग्स फाइंड किया और टोटल ड्रॉइंग्स पे एवरेज डेट से 31st मार्च तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है? आई होप एवरीवन इज गेटिंग। फ्रेंड्स यहां पे अगेन डेट 10th अक्टूबर 2010 नहीं है, इट इज 10th अक्टूबर 2009। तो आप लोग पॉज करेंगे, कॉपी करेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे पूरा, फिर नेक्स्ट एग्जांपल पे हम लोग जा रहे हैं। प्लीज कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन 4 वी आर गिवन ट्रांजेक्शंस, हमको ट्रांजेक्शंस दिए हैं मिस्टर ग्रीन एंड मिस्टर रेड के बीच में। मिस्टर ग्रीन एंड मिस्टर रेड हैड फॉलोइंग म्यूचुअल डीलिंग्स एंड डिजायर टू सेटल देयर अकाउंट्स ऑन एवरेज ड्यू डेट। परचेज बाय ग्रीन फ्रॉम रेड, और नीचे आपको सेल्स बाय ग्रीन टू रेड दिया है। मतलब मिस्टर ग्रीन इज परचेजिंग गुड्स फ्रॉम मिस्टर रेड एंड ही इज ऑल्सो सेलिंग गुड्स टू मिस्टर रेड। परचेज और सेल दोनों कर रहे हैं, दो अपोजिट ट्रांजैक्शंस दिए हैं, हम बोल सकते हैं वी कैन कॉल देम कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शंस, अपोजिट ट्रांजैक्शंस। तो यहां पे हम किसी एक का पॉइंट ऑफ व्यू लेके एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे। आइदर वी विल टेक ऑल दी डेट्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मिस्टर ग्रीन, या फिर हम लोग सारी डेट्स लेंगे फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मिस्टर रेड। किसी भी एक पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू लेके हम लोग सारी डेट्स कंसिडर करेंगे। तो हम लोग यहां कंसिडर कर रहे हैं, आप किसी का भी पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, दैट वोंट मेक एनी डिफरेंस। हम लोग यहां पे पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं ऑफ मिस्टर ग्रीन। सो दिस इज सॉल्यूशन टू क्वेश्चन 4 फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मिस्टर ग्रीन। मिस्टर ग्रीन के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मिस्टर ग्रीन। हमको एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए सर? हमको एक ड्यू डेट चाहिए, अमाउंट सभी ट्रांजैक्शंस का दिया ही है, नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है, एंड देन वी मे कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परचेजेस दिए हैं, परचेज बाय ग्रीन फ्रॉम रेड। मिस्टर ग्रीन इज परचेजिंग गुड्स फ्रॉम रेड। इफ ही इज परचेजिंग गुड्स फ्रॉम रेड, अमाउंट इज पेएबल टू रेड। ये सारे अमाउंट्स पे करने हैं रेड को। ऑल दीज आर पेमेंट्स टू बी मेड टू रेड। परचेज बाय ग्रीन फ्रॉम रेड, सी क्रेडिट पीरियड नहीं दिया है आपको, किसी भी ट्रांजैक्शन का क्रेडिट पीरियड नहीं दिया है। क्रेडिट पीरियड नहीं दिया है तो जो ट्रांजैक्शन डेट है वही हमारा ड्यू डेट हो जाएगा। दैट सेम ट्रांजैक्शन डेट विल बी टेकन एज ड्यू डेट। सो 6th of January 2010,
6th of January 2010 6000 पेएबल है। 2nd Feb 2010 हमने वापस परचेज किया है, जिसके लिए 2800 पेएबल है टू मिस्टर रेड। 31st March 2010 2000 पेएबल टू मिस्टर रेड। फिर सेल्स है ऑन 6th January 2010 6th January 2010 there is sale by Mr. Green to Red. Now if there is sale by Mr. Green to Red, is amount payable to Mr. Red? No sir. अगर हम गुड्स बेच रहे हैं मिस्टर रेड को तो अमाउंट इज नाउ रिसीवेबल। तो कैसे करेंगे? अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर रेड इज 6600 या नेगेटिवली पेएबल इज 6600। अमाउंट पेएबल हमने सारा पॉजिटिव रखा है, तो अमाउंट रिसीवेबल विल बी विद नेगेटिव साइन। 9th मार्च को अगेन सेल किया है, जिसके लिए अमाउंट रिसीवेबल 2400 है। 20th मार्च अगेन वी आर सेलिंग गुड्स टू मिस्टर रेड, जिसके लिए 500 इज रिसीवेबल। से मिस्टर रेड का पॉइंट ऑफ व्यू रखें, मिस्टर रेड का, तो सेम यही डेट्स आएगा, यही अमाउंट आएगा। चेंज क्या हो जाएगा? ऑल दीज विल बी अमाउंट्स नेगेटिव और ये सारा अमाउंट पॉजिटिव हो जाएगा। सो दैट वोंट मेक एनी डिफरेंस। हम लोग अगर कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शंस के लिए एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट कर रहे हैं, कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शंस के लिए, अपोजिट ट्रांजैक्शंस के लिए एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमको डिफरेंटली नहीं सोचना है। चेंज क्या करना है? अमाउंट पेएबल और रिसीवेबल दोनों सेम साइन के साथ नहीं रखना है। इफ यू आर कीपिंग अमाउंट पेएबल एज पॉजिटिव, अमाउंट रिसीवेबल विल बी विद नेगेटिव साइंस। अगर आप अमाउंट पेएबल को नेगेटिव रखते हैं तो अमाउंट रिसीवेबल विल बी विद पॉजिटिव साइन। तो साइन चेंज कर देना है खाली। सेम वैसे ही आगे स्टार्ट करेंगे। आफ्टर डिसाइडिंग ड्यू डेट हमको बेस डेट सिलेक्ट करना है। वी नीड टू सिलेक्ट अ बेस डेट। कौन सा बेस डेट ले सकते हैं? सर अर्लीस्ट डेट को हम बेस डेट ले सकते हैं, मतलब 6th January अगेन कैन बी टेकन एज आर बेस डेट। 6th of January 2010 विल बी आर बेस डेट। 6th January अगर बेस डेट है तो नंबर ऑफ डेज हमको कैलकुलेट करना है फ्रॉम बेस डेट टू ड्यू डेट। 6th January नंबर ऑफ डेज विल बी 0। 6th January से 2nd Feb, जनवरी में 25 days are left. 25 days of Jan and 2 days of Feb, total 27 days. 31st March, तो 25 days of Jan, 28 days of Feb and 31 days of March, 84 days. Again 0 days. 25 days of Jan, 28 days of Feb and 9 days of March. 9 days of March will be 62 days. And up to 20th March, 25 days of Jan, 28 days of Feb and 20 days of March. It comes to 73 days. After calculating number of days, क्या करना है? Product find करना है सर. Product 27 into 28. Total product comes to 40. 75,600. Then 1,68,000. 2,400 into 62. 148,800. And 73 into 500, it comes to 36,500. सर ये दोनों प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, तो टोटल अमाउंट कितना आएगा सर? 6,000 प्लस 2,800 प्लस 2,000 माइनस 6,600 माइनस 2,400 माइनस 500. Total amount comes to 1,300 plus
टोटल प्रोडक्ट कितना आएगा सर? 75,600 प्लस 1,68,000 माइनस 148,800 माइनस 36,500, 58,300 सर। तो एवरेज ड्यू डेट क्या हो जाएगा? एवरेज ड्यू डेट इज बेस डेट. व्हाट इज योर बेस डेट? 6th of January 2010 plus total product. What is total product? 58,300 divided by total amount 1,300. तो 6th of January 2010 plus, तो it comes to 44.8, मतलब 45 days. जनवरी में कितना दिन बाकी था? 25 डेज. तो 20 डेज फेब का होगा. व्हाट विल बी योर एवरेज ड्यू डेट? 20th फेब 2010. 20th फेब को अगर नेट पेमेंट ग्रीन रेड को पे करता है तो देयर इज नो लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू ईदर पार्टी. आई होप ये प्रॉब्लम समझ में आया. फाइन. विल नाउ गो ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. पॉज करो. फ्रेंड्स, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन 5 क्या इंफॉर्मेशन दिया है? मनोज हैड फॉलोइंग बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल अगेंस्ट सोहन. यू आर गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट बिल्स रिसीवेबल एज वेल एज बिल्स पेएबल. मतलब अगेन कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शंस दिए हैं. अगर बिल रिसीवेबल की अमाउंट्स पॉजिटिव रखें तो पेएबल की अमाउंट सारी नेगेटिव हो जाएगी. पेएबल की अमाउंट नेगेटिव रखें तो रिसीवेबल की सारी पॉजिटिव हो जाएगी. यू आर सपोज टू कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट व्हेन पेमेंट कैन बी रिसीव्ड और मेड विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटरेस्ट. लास्ट दो लाइन क्या दिया है सर? 15th August 2012 is obviously a public holiday. However, 6th September 2012 was a sudden holiday. सडन हॉलीडे अगर है तो हम लोग कौन सा डेट को ड्यू डेट मानते हैं? पब्लिक हॉलीडे है तो हमेशा प्रीसीडिंग डे को ड्यू डेट मानते हैं. बट सडन हॉलीडे है तो फॉलोइंग डे, नेक्स्ट डे को ड्यू डेट मानते हैं. तो 6th सितंबर अगर किसी बिल का ड्यू डेट आया तो हमें कौन सा डेट ड्यू डेट लेना पड़ेगा सर? 7th सितंबर. फाइन. स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 5. हमको सभी बिल्स का ड्यू डेट कैलकुलेट करना पड़ेगा. फॉर ऑल द बिल्स ड्यू डेट, अमाउंट फॉर ऑल द बिल्स इज गिवन, नंबर ऑफ डेज, एंड देन वी वुड बी कैलकुलेटिंग द प्रोडक्ट. चलिए देखिए, ड्यू डेट. पहला बिल 1st जून बिल का डेट दिया है. टेन्योर 3 months. 1st June 1/6 plus 3 months is 1/9. 1st September plus 3 days of grace. तो 4th September 2012 amount of first bill is 3,000. Second bill 5th of June. 5th of June plus 3 months is 5th September plus 3 days of grace, 8th of September 2012. Amount is 2,500. Sorry. Third bill, sir. 9th of June plus 1 month. 9th June plus 1 month is 9th July plus 3 days of grace, 12th July 2012. Amount given is 6,000. फिर नेक्स्ट बिल 12th June plus 2 months. 12th June plus 2 months is 12th of August. 12th August plus 3 days grace, 15th August सर. 15th August तो पब्लिक हॉलीडे है. पब्लिक हॉलीडे है तो हम प्रीसीडिंग डे 14th August को ड्यू डेट मान लेंगे. 14th August 1,000. 20th June
plus 3 months is 20th September plus 3 days of grace, 23rd of September 2012, and amount is 1500. तो ये सारे बिल्स रिसीवेबल की ड्यू डेट्स है. बिल्स पेबल, अब अमाउंट्स सारी नेगेटिव करेंगे. 29.5 plus 2 months, 29.5 plus 2 months is 29.7, 29.7 plus 3 days grace, 30, 31, 1. 1st August 2012, amount for first bill payable, negative 2000. 3rd June plus 3 months is 3rd September. 3rd September plus 3 days of grace, 6th September sir. 6th September तो पब्लिक हॉलीडे, सॉरी सडन हॉलीडे है. सडन हॉलीडे अगर है तो नेक्स्ट डे 7th September 2012 will be your due date. Amount is 3000. Next, 9th June plus 1 month is 9th of July plus 3 days of grace, again 12th of July 2012. Amount is 6000. सो सभी बिल्स रिसीवेबल एंड पेएबल का ड्यू डेट हमने कैलकुलेट कर लिया है. आफ्टर डिसाइडिंग ड्यू डेट हमको अब सेलेक्ट करना है बेस डेट. सर बेस डेट क्या होगा? एनी डेट कैन बी टेकन एज बेस डेट, बट हम लोग तो हमेशा अर्लीस्ट डेट को बेस डेट ले लेते हैं. 12th of July हमारे लिए बेस डेट हो गया. 12th of July 2012 इज आवर बेस डेट. तो कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट टू ड्यू डेट, फ्रॉम 12th of July टू 4th September. सर जुलाई में 19 डेज बाकी हैं. 31 डेज अगस्त में होते हैं, 12 दिन चले गए. 19 डेज अगस्त में बाकी हैं, 19 डेज जुलाई में बाकी हैं, 31 डेज अगस्त के हैं एंड 4 डेज सितंबर के, 54 डेज. 19 प्लस 31 प्लस 4, 8 सितंबर तक. तो वापस 19 डेज जुलाई के प्लस 31 डेज अगस्त के प्लस 8 डेज सितंबर के, 58 डेज. 12th of July 0 number of days. 14th August 19 days of July and 14 days of August, 33 days. 23rd September 19 days of July, 31 days of August, 23 days of September, total 73 days. 1st August 19 days of July, 1 day of August, 20 days. 19 days of July, 31 days of August, 7 days of September, 57 days. 12th of July again 0 number of days. Number of days मिल गया. तो we will now calculate product for all these transactions. Product 1,62,000. 1,45,000. 33,000. 1,09,500. फिर 40,000 नेगेटिव. 171 negative and 0. So total amount $3,000. Total product, friends,
2,38,500. So average due date, base date. What is base date? We have taken 12th of July as our base date. Plus total product कितना है सर? Total product है 2,38,500 divided by total amount is 3,000. तो 12th of July 2012 plus 79.5 मतलब 80 days. तो 19 days of July, 19 days of July, अगस्त के 31 days, 50 days हो गया. तो 30 days सितंबर के होंगे ना, 30 September 2012. What will be average due date? 30 September 2012. समझ में आया? सबको आ रहा है समझ में? सर गलती किया आपने. 30 सितंबर तो पब्लिक हॉलीडे नहीं है. 30 सितंबर पब्लिक हॉलीडे है तो हमें प्रीसीडिंग डे को नहीं लेना चाहिए एवरेज ड्यू डेट. सॉरी फ्रेंड्स, ड्यू डेट जब आप कैलकुलेट कर रहे हो, ड्यू डेट अगर पब्लिक हॉलीडे पे आता है तो प्रीसीडिंग डे या नेक्स्ट डे हम लोग ड्यू डेट लेते हैं, क्योंकि वहां डेट ऑफ पेमेंट डिसाइड कर रहे हैं. क्या एवरेज ड्यू डेट डेट ऑफ पेमेंट है? लेट मी अगेन रिमाइंड यू, एवरेज ड्यू डेट इज नॉट दैट डेट जिसपे पेमेंट दिया जाता है. सर ये डेट तो हम लोग यूज करते हैं ओनली इन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट. एवरेज ड्यू डेट इसका मतलब पब्लिक हॉलीडे पे आए तो उसे पब्लिक हॉलीडे पे रहने देना है. अगर आप यहां पे 29 सितंबर को एवरेज ड्यू डेट लोगे तो आप एक दिन का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट कर लोगे. तो रिमेंबर दिस, एवरेज ड्यू डेट पे कभी एक्चुअल पेमेंट नहीं होता है. एवरेज ड्यू डेट तो निकाला ही जाता है फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट. एवरेज ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे पे आता है या सडन हॉलीडे पे आता है तो उसको कभी चेंज नहीं करना है, उसे उसी डेट पे रहने देना है. क्लियर है? ओके, तो कॉपी दिस, देन विल मूव ऑन टू नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्जांपल्स. हो गया? ओके, तो अब तक हमने जो 5 क्वेश्चन किए हैं, आई होप every sum is clear to you, especially the method which we are following is absolutely clear. अब फ्रेंड्स एक चीज पे ध्यान दीजिए, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, इन ऑल दोस क्वेश्चंस अमाउंट वाज लेंट इन सेवरल इंस्टॉलमेंट्स, बट वी वर कैलकुलेटिंग अ सिंगल डेट ऑफ रीपेमेंट फॉर ऑल द इंस्टॉलमेंट्स. वापस अमाउंट अलग अलग डेट को उधार दिया जा रहा था, अलग अलग इंस्टॉलमेंट में लेंट किया जा रहा था, लेकिन एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करके हम सिंगल डेट ऑफ रीपेमेंट फाइंड कर रहे थे. यस, तो अमाउंट वाज लेंट इन सेवरल इंस्टॉलमेंट्स बट वाज रीपेड इन वन इंस्टॉलमेंट. देयर कैन बी अनदर एग्जांपल वेयर अमाउंट इज लेंट इन वन इंस्टॉलमेंट बट इज रीपेड इन सेवरल इंस्टॉलमेंट्स. एक दूसरे तरह का एग्जांपल हो सकता है ना, जहां पे अमाउंट लेंट किया गया हो एक इंस्टॉलमेंट में बट उसका रीपेमेंट किया गया सेवरल इंस्टॉलमेंट में, तब एवरेज ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? विच टाइप ऑफ एग्जांपल? वेयर अमाउंट इज लेंट इन वन इंस्टॉलमेंट but is repaid in several installments. जहां पे उधार दिया गया है एक इंस्टॉलमेंट में लेकिन रीपेमेंट हो रहा है सेवरल इंस्टॉलमेंट्स में, तो एवरेज ड्यू डेट क्या होगा? तो एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स. एवरेज ड्यू डेट क्या होगा? एवरेज ड्यू डेट विल बी your base date. अब in this type of examples, इस तरह के एग्जाम्पल में बेस डेट हमेशा फिक्स है, कोई भी डेट बेस डेट नहीं ले सकते हम. बेस डेट इज ऑलवेज योर डेट ऑफ लेंडिंग.
बेस डेट क्या होगा सर? बेस डेट ऑलवेज इज डेट ऑन विच लोन इज गिवन, वो डेट जिस पे लोन दिया गया है। तो एवरेज ड्यू डेट इज बेस डेट प्लस सम ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स। अगर इंस्टॉलमेंट ईयरली है, सर मंथली इंस्टॉलमेंट है तो सम ऑफ नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम बेस डेट टू ड्यू डेट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। किसका कैलकुलेशन करना है? नंबर ऑफ ईयर्स का या नंबर ऑफ मंथ्स का। कहां से? इस बेस डेट से हर एक इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट तक, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, टू बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। सर एक एग्जाम्पल होना चाहिए तो अच्छी तरह समझ में आएगा। फॉर्मूला लिखा आपने वो तो पता चल रहा है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड्स, ₹10,000 lent by दास ब्रदर्स टू कुमार एंड सन्स ऑन 1 अप्रैल। 10,000 का लोन दास ब्रदर्स ने कुमार एंड सन्स को दिया है 1 अप्रैल को, जो रीपेएबल है 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। सी दिस इज द केस, अमाउंट दिया है 10,000 का एक बार 1 अप्रैल को, रीपे करना है 5 टुकड़ों में, 5 इंस्टॉलमेंट में। तो अमाउंट इज लेंट इन 1 इंस्टॉलमेंट बट इज रीपेड इन सेवरल इंस्टॉलमेंट्स। यस, कमेंसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2011। ये इंस्टॉलमेंट्स पे करना स्टार्ट कब से कर रहे हैं? 1 अप्रैल 2011। फाइंड एवरेज ड्यू डेट एंड ऑल्सो कैलकुलेट इंटरेस्ट एट 5% per annum, which Das brothers will recover from Kumar and Sons. Fine. तो हमको सर सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? What do you have to calculate? हमको सर सम ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स चाहिए। हमारे पास क्या है? डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट है। व्हाट डू वी हैव हियर? डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट, एंड वी नीड टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ईयर्स। डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट, पहला इंस्टॉलमेंट कब पे किया? डेट ऑफ लेंडिंग वॉज बेस डेट, या फिर जिस दिन लोन दिया गया, डेट ऑफ लेंडिंग वॉज 1 अप्रैल 2010, करेक्ट? लोन किस दिन दिया गया? 1 अप्रैल 2010। 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो पहला इंस्टॉलमेंट 1/4/2011, एक साल के गैप में इंस्टॉलमेंट पे किए। 1/4/12, 1/4/13, 1/4/14 एंड 1/4/2015। हमने सारे इंस्टॉलमेंट्स पे किए एट अ गैप ऑफ 1 ईयर, एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं। तो अब हमको नंबर ऑफ ईयर्स कैलकुलेट करना है फ्रॉम बेस डेट टू ड्यू डेट, मतलब इस बेस डेट से ड्यू डेट तक नंबर ऑफ ईयर्स कैलकुलेट करना है। 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 11, 1 ईयर। 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 12, 2 ईयर्स। 1 अप्रैल 10 से 1 अप्रैल 13, 3 ईयर्स। 4 ईयर्स, 5 ईयर्स। तो ये सम ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स हो गया ना, बेस डेट से हर एक ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट तक। टोटल कितना हुआ सर? टोटल 15 ईयर्स। तो अब एवरेज ड्यू डेट क्या होगा सर? एवरेज ड्यू डेट इज योर बेस डेट, मतलब 1 अप्रैल 2010 प्लस सम ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब 15 ईयर्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, 5 ईयर्स। It is 1/4/2010 plus 3 years. सर एवरेज ड्यू डेट कितना मिला? 1/4/2013। What is average due date here? It is 1/4/2013. समझ आ रहा है? हाँ सर, ये कैलकुलेशन समझ में आया, पर एक चीज समझ में नहीं आई। एवरेज ड्यू डेट आपने बताया था वो डेट है जिस पे अगर पेमेंट दिया जाए तो किसी भी पार्टी को इंटरेस्ट का नुकसान नहीं होता है, करेक्ट? यस। तो सर 1/4/13 को अगर सारा लोन रीपे किया जाए, 1/4/10 को लोन लिया था, 1/4/13 को 3 साल बाद लोन रीपे किया जाए,
इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा क्या? देना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी होगा 3 साल बाद एक साथ रीपे करेंगे तो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो फिर ये डेट कैलकुलेट करने का मतलब क्या है? वाई डिड यू कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट हियर? अगेन सो दैट आई कैन कैलकुलेट इंटरेस्ट इजीली, ताकि मैं इंटरेस्ट बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकूं। सर एक बार समझाओ, इंटरेस्ट अगर यहां कैलकुलेट करना है, सपोज ये एवरेज ड्यू डेट का टेक्निक हमको नहीं पता है, फॉरगेट एवरेज ड्यू डेट, हमको यहां पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। हाउ कैन यू कैलकुलेट इंटरेस्ट? आप इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? इंटरेस्ट किस पे किया जाएगा सर? इंटरेस्ट अनपेड अमाउंट पे किया जाएगा, करेक्ट? इंटरेस्ट किस पे किया जाएगा? अनपेड अमाउंट पे किया जाएगा। तो अब सोचो, पहले साल 1410 से 31 मार्च 11, 1410 से 31 मार्च 11 पूरा 10,000 का लोन अनपेड था, कुछ भी रीपे नहीं किया था। मतलब पहले साल तो पूरे 10,000 पे इंटरेस्ट पे किया जाएगा एट 5%, 500 रुपए इंटरेस्ट आएगा। फिर 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में रीपे कर रहे हैं, 10,000 5 इक्वल पार्ट्स, मतलब हर साल 2,000 रुपए रीपे कर रहे हैं, हर साल 2,000 का लोन चुका रहे हैं बैंक को। तो हमने 1411 को 2,000 का लोन रीपे कर दिया। मतलब 1411 को 2,000 रीपे करने के बाद 1411 से 1412 8,000 अनपेड था ना, यहां से यहां तक 8,000 अनपेड था, तो दूसरे साल इंटरेस्ट 8,000 पे करना पड़ेगा। अनपेड अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता है सर। 1412 को वापस 2,000 रीपे कर दिया, तो 1412 से 1413 अब अनपेड कितना है? 6,000 अनपेड है सर, तो 6,000 पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 1413 से 1414 अब अनपेड कितना है? 2,000 वापस रीपे कर दिया, अब 4,000 अनपेड है, 4,000 पे 5% इंटरेस्ट लगेगा। यहां से लेके यहां तक वापस कितना अनपेड है? 2,000 अनपेड है, 2,000 पे इंटरेस्ट लगेगा। और इसके बाद कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होगा। मतलब ये 5 साल में हमें कुमार एंड सन्स को कितना टोटल इंटरेस्ट दास एंड ब्रदर्स को पे करना है? 1,500। ऐसे ही कैलकुलेट होगा ना इंटरेस्ट अनपेड अमाउंट पे। अब सोचो, अगर आपको एवरेज ड्यू डेट का टेक्निक पता है तो आपको हर साल अनपेड अमाउंट पे इंटरेस्ट निकालने का जरूरत नहीं है। हर साल इस तरह से अनपेड अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है। आप डायरेक्टली अपने टोटल लोन अमाउंट पे, टोटल लोन अमाउंट मतलब 10,000 पे, डायरेक्टली अपनी टोटल लोन अमाउंट पे एवरेज ड्यू डेट तक का इंटरेस्ट निकाल सकते हो। मतलब अगर हमें टोटल इंटरेस्ट पेएबल कैलकुलेट करना है तो 10,000 अपना टोटल लोन अमाउंट है, उस पे 5% इंटरेस्ट अप टू विच डेट सर? 1413, 1410 से 1413, मतलब ये 3 इयर्स का इंटरेस्ट निकाल लेना है, सीधा टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगा ना आपको। इतना मेहनत करने का जरूरत है क्या? तो आप लोग वापस देख सकते हैं ये टेक्निक एवरेज ड्यू डेट का कहां यूज हो रहा है? नॉट इन डिसाइडिंग डेट ऑफ पेमेंट बट इन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। आई होप दिस इज क्लियर। फाइन, इसी में एक और सिचुएशन भी दिया है, लेट्स रीड दैट सिचुएशन फर्स्ट। सिचुएशन 2 में बोला है, इफ इंस्टॉलमेंट्स वर हाफ ईयरली commencing from 1st April 11, then calculate average due date and interest. इंस्टॉलमेंट अब ईयरली की जगह हाफ ईयरली कर दिए। फाइन, instead of yearly now installments are half yearly. So what are date of installments given?
व्हाट आर डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स गिवन? पहला इंस्टॉलमेंट कमेंस कब से करना है? 1/4/11 से सर। हाफ ईयरली है तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट विल बी ऑन 1/10/11 आफ्टर 6 मंथ्स। फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 1/4/12, फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 1/10/2012, फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 1/4/2013। बेस डेट क्या है? व्हाट इज योर बेस डेट? बेस डेट तो फिक्स है सर। बेस डेट इज ऑलवेज डेट ऑफ लेंडिंग हियर। मतलब बेस डेट क्या है? बेस डेट इज 1/4/2010। तो नंबर ऑफ ईयर्स 1/4/2010 से 1/4/11 1 ईयर, 1/4/10 से 1/10/11 1.5 ईयर्स, 1/4/10 से 1/4/10 से 1/4/12 2 ईयर्स, 2.5 years and 3 years. Total comes to 10 years. तो एवरेज ड्यू डेट क्या होगा? एवरेज ड्यू डेट विल बी योर बेस डेट. बेस डेट इज 1/4/2010 प्लस सम ऑफ नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स. 1/4/2010 प्लस 2 years. सर अपना एवरेज ड्यू डेट आ जाएगा 1/4/2012. इंटरेस्ट शॉर्टकट में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इंटरेस्ट 10,000 रुपीज पे कैलकुलेट करेंगे एट 5% डायरेक्टली अप टू 1/4/2012, मतलब फॉर 2 years. तो टोटल इंटरेस्ट पेएबल कितना हो गया? 1,000. आपको चेक करना है तो वापस अनपेड अमाउंट पे कैलकुलेट करके देख सकते हैं. जस्ट फॉर कैलकुलेशन कैलकुलेट करते जाएंगे. पहले साल पूरा 10,000 अनपेड था, 10,000 पे 5%. फिर 1/4 से 1/10 कितना अनपेड था? 8,000. 8,000 अनपेड था बट ओनली फॉर 6 मंथ्स, तो 8,000 पे 6 महीने का इंटरेस्ट. फिर 1/10 से 1/4 6,000 अनपेड था फॉर 6 मंथ्स, तो 150. फिर यहां से यहां तक कितना अनपेड था? 4,000 अनपेड था. 4,000 पे 6 महीने का इंटरेस्ट, 4,000 पे 6 महीने का इंटरेस्ट 100. यहां से यहां तक 2,000 अनपेड था. सर 2,000 पे 6 महीने का इंटरेस्ट 50. तो 500 प्लस 700 प्लस 150 प्लस 100 प्लस 50, टोटल इंटरेस्ट उतना ही आता है ना. लेकिन आपको नहीं लगता है ये अनपेड अमाउंट पे हमने कैलकुलेट किया, उससे ज्यादा इजीली हम एवरेज ड्यू डेट की टेक्निक से फाइंड कर सकते हैं. सो दिस टेक्निक अगेन आई एम सेइंग is not used to decide date of payment. This technique is mainly used in calculation of interest. Let's take one more situation, friends. Situation 3. Situation 3, where date of installments, amount जो रीपे करना है वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ही करना है. Amount repayable in 5 equal installments, but date of installment आपको थोड़ा अलग दिया है. First installment is payable on 1/4/2010, 1/4/2011. Second installment is repayable on 1/10/2011, 1/10/2012, 1/4/2013, 1/4/2014. If these are installments given, तो आपको कैलकुलेट करना है what should be average due date and what should be your interest. पहले क्या करेंगे? नंबर ऑफ ईयर्स कैलकुलेट कर लेते हैं सर. बेस डेट तो फिक्स है. इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा डेट ऑफ लेंडिंग 1/4/2010 अपना बेस डेट होगा. तो बेस डेट तो फिक्स है. नंबर ऑफ ईयर्स क्या होंगे? सर मुझे ईयर्स में नहीं मंथ्स में कैलकुलेट करना है, तो कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकते हो. इंस्टेड ऑफ ईयर्स यू कैन डू योर कैलकुलेशन इन मंथ्स ऑल्सो. नंबर ऑफ ईयर्स 1/4/10 से 1/4/11 1 ईयर, 1/4/10 से 1/10/11 1.5 ईयर्स, 1/4/10 से 1/10/12
2.5 years. 1 4 10 से 1 4 13, 3 years and 4 years. Correct? Total number of years 12 years, sir. Average due date क्या हो जाएगा? Base date. What is base date? 1/4/2010 plus total number of years divided by number of installments. 1/4/2010 plus 2.4 years. 2.4 years मतलब क्या हुआ? 2 years and 4 months. 2.4 years मतलब 4 months are to be added. सोचो थोड़ा. सर 2.5 years होता है तो आप 5 months ऐड करते हो क्या? नहीं. 2 years and 4 months. तो 4 months 2 years 2.4 years मतलब 0.4 को आपको मंथ्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना. ध्यान से देखिए. 1/4/2010 प्लस 2 years तो पूरा है बोल सकते हैं हम लोग, प्लस 0.4 years है. अब हमको पता है 1 year equals to 12 months. तो 0.4 years equals to how many months? 4.8 months. Correct. 1/4/2010 plus 2 years plus 4.8 months मतलब 4 months तो हम पूरा ले सकते हैं, प्लस 0.8 ऑफ अ मंथ. 1 month मतलब 30 days होता है. 1 month अगर 30 days होता है तो 0.8 months मतलब कितना डेज होगा? 0.8 into 30 विल से 24 days. मतलब एवरेज ड्यू डेट क्या हो जाएगा? 1 day प्लस 24 days 25, 4 plus 4 8, 10 plus 2 years 12, 25 8 2012 will be your average due date. 25 8 2012 will be your average due date. Although इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करना है तो ये डेट से कोई लेना देना नहीं है. इंटरेस्ट कैन बी डायरेक्टली कैलकुलेटेड फॉर 2.4 years. आप बोल सकते हो what will be interest here on 10,000. आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है at 5% फॉर सिंपली 2.4 years. तो इट विल बी 1200. क्लियर है? तो पॉज करेंगे, कॉपी करेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे. एवरेज ड्यू डेट चैप्टर कम्स टू एन एंड हियर. देयर आर 4 क्वेश्चंस गिवन इन योर होमवर्क सेक्शन एंड पास्ट एग्जामिनेशन में पूछे हुए भी 4 क्वेश्चंस हैं. दोज आर सम्स फॉर योर सेल्फ प्रैक्टिस. ये 8 क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको नॉट मोर देन हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स लगेगा. तो डू प्रैक्टिस देम. हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उनके आंसर्स डिस्कस करेंगे एंड देन विल गो ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर. तो प्लीज कॉपी दिस. कमर दुख गया आज.